مرحوم ایکس ایم ایل اے سید یاسین صاحب کی تعزیتی جلسہ منعقد کیا گیا۔ مرحوم ایکس ایم ایل اے سید یاسین صاحب کی یاد میں منعقد تعزیتی جلسہ بخیر و مکمل پایا۔ اس موقع پر رائے چور اور آس پاس کے علاقوں سے بزرگ علماء، مشائخ، عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ جلسے میں مرحوم کی دینی، سماجی اور عوامی خدمات کو یاد کیا گیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ شرکت کرنے والے تمام مہمانوں اور عقیدت مندوں نے مرحوم سے تعزیت کا اظہار کیا۔ پروگرام کے اختتام پر خاص دعا کا اہتمام کیا گیا۔ اس تعزیتی جلسے میں سید شاہ مرشد جانی صاحب سے لے کر تمام بزرگ مشائخ و علماء موجود رہے۔ تمام محترم شخصیات کے نام آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سبب بنا ذریعہ بنا اے اللہ بالخصوص اللہ مبارک کے جلسہ کرا کے اے اللہ اس کے صدقے دل میں اللہ علم میں جو ماوا جیسے بلند مقام پر درجات فائد فرما اے اللہ کی رات کو بلند فرما اے اللہ تمام دعا آقا نامدار تاجدار مدینہ صاحب کی وسیلے سے اے اللہ من جملہ لوائقین کو صبر جمیل اور اس دکھ پر اجر عظیم عطا فرما ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تو سب سے پہلے جو ہے درود کے ساتھ جو ہے حسب اطاعت 11 یا 30 یا 51 جتنے بھی ہیں سورۃ اخلاص پڑھ کے مرحوم کے روح کو بخشیں، اس کے بعد جلسے کا آغاز کریں۔ تو دل آواز سے پڑھی سورۃ اخلاص 11 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سماعت کریں۔ گلاب جیسے ہیں خوش رنگ سارے پھولوں میں، گلاب جیسے ہیں خوش رنگ سارے پھولوں میں، یہی ہے شان محمد کی سب رسولوں میں، یہی ہے شان محمد کی سب رسولوں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین سے عرش تلک مصطفیٰ کا جلوہ ہے، رسول پاک کا جلوہ خدا کا جلوہ ہے، اس لیے تو رسول خدا کے روضے پر فرشتے فاتحہ درود پڑھتے ہیں آ کے روضے پر۔ جو روضہ دیکھا تو خیر الورا کو دیکھ لیا، نبی کو دیکھا تو سمجھو خدا کو دیکھ لیا۔ جب خیامت میں اٹھے ہم عرض اس طرح کریں ہم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میرے آقا
पर्दा हटा दो, शक्ल नूरानी दिखा दो, साथ साथ आवाज सुना दो, दिल की आरज़ू मिटा दो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आरज़ू तमन्ना थी, मगर वक्त और हालात की बिना पर और कुछ उनके जो आरिज़ा जिसमें वो मुब्तला रहे उसकी बिना पर वो रायचूर के मुसलमानों के लिए ज़्यादा उनकी फलाह बहबूद के काम अंजाम देने से ज़रा दूर रहे। फिर भी बहुत सारे काम किए हैं, उनकी वजाहत करना मैं यहाँ मुनासिब नहीं समझता। लिहाजा मैं जनाब यासीन साहब के ताल्लुक़ से इतना कहूँगा कि आप सादात घराने से ताल्लुक़ रखते थे और जहाँ तक ये महफिल है हम उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत नहीं कर सकते, इसलिए कि जो भी सैयद होता है दुनिया में बख्शाया आता है। सैयद के लिए सिर्फ हम उसकी सरफराजी के लिए दुआ कर सकते हैं या आखिरत में उसकी सरबुलंदी के लिए, उसके दर्जात के बुलंद होने के लिए करते हैं। इसीलिए कि सैयद जो होता है उसके ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने आयत तत्हीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी है और जिसका मफ़हूम है अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि ऐ मोहम्मद आपकी पूरी की पूरी आल गुनाहों से पाक है। तो चूँकि यासीन साहब का ताल्लुक़ भी सैयद घराने से रहा है, आपके गुनाहगार होने का किसी तरह से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इस बात की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाना चाहिए। और आप सादात हैं, सैयद घराने के हैं और सैयद के ताल्लुक़ से हज़रत खुतबे वेलूर सैयद शाह लतीफ़ुद्दीन ख़ादिर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ़ में फरमाते हैं, जैसा कि आपने कई तसानीफ़ लिखे हैं उसमें से एक तसनीफ़ है जिसमें आप फरमाते हैं कि अगर कोई सैयद ज़ाहिरी तौर पर गुनाहगार नज़र आता हो तो उसके मरने से पहले वो मौत के करीब हो, जब तक अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ नहीं कर देता मलकल मौत उसकी रूह को कब्ज़ नहीं करता। और फिर कोई भी सैयद गुनाहगार नहीं होता, चाहे वो हसनी हो या हुसैनी हो। ये कुरान और अहदीस से बातें साबित हैं और जहाँ तक हो सके आम मुसलमानों को भी चाहिए खुद सादात से बड़ा ही खसारा उठाना पड़ता है। जैसा कि खुतबे वेलूर हज़रत सैयद शाह लतीफ़ुद्दीन ख़ादिर रहमतुल्लाह अलैह सैयदों के ताल्लुक़ से फतवा सादिर फरमाए। सैयदों के ताल्लुक़ से फतवा यानी दीनी मसले का हल फरमाए हैं। सैयदों की बाबत से सैयद के बाबत से जो फतवा जो हज़रत खुतबे वेलूर ने फरमाया है, सैयदों का ताल्लुक़ भी दीन से जुड़ा हुआ है। आप फरमाते हैं कि एक आम सैयद, अगर उस आम सैयद को किसी ने कह दिया कि सैयद गिद्दा है, पस्त खत वाला है, तो उसी वक्त कहने वाला कुफ्र में चले जाता है और जब उसकी मौत वाक़ई होती है तो बहालत कुफ्र होती है। यानी अगर गुनाहगार कितना ही भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, कोई भी शख्स उसके ईमान की बदौलत वो अगर खबर का अजाब भी उस पर हो चुका या जहन्नम के अजाब में भी मुब्तला है तो वो तमाम अजाब मुकम्मिल होने के बाद ईमान की बदौलत को ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। मगर किसी ने कह दिया सैयद गिद्दा है या पस्त खत वाला है तो हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम में पड़े रहेगा, उसके लिए जन्नत हराम कर दी जाती है। तो ये मुकाम है सैयद सादात का। इसीलिए हमें चाहिए कि सैयदों का एहतराम करना चाहिए, उनकी ग़िबतखोरी से दूर रहना चाहिए। आखिर में मैं जनाब यासीन साहब मरहूम मक़बूर के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ख़बर में सुकून व चैन अता फरमाए और आखिरत में उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वाखिर दावाना वही हमारे आने से मैं मुख्तसर हम कर लेते हैं, आप कभी भी कर बोले तो हमारे मुरीदीन की तरफ से ये मुख्तसर
जलसा है ताज़ियत का, इंशाअल्लाह लगता है कि इनका जो है बड़ा जलसा बड़े पैमाने पर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाह। तमाम हजरात को, मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी को इसका रंग है, दुख है। कुल्लू नस्ल जायक़ातुल मौत, हर जानदार को मौत का मौका करना है। बहरहाल अच्छे आदमी थे, किसी को तकलीफ़ नहीं देते थे। अब साहब बोल रहे हैं पानी के बारे में, मैं भी लिखा था और कुरान बोल दिए। हाँ बराबर बोल दिए, कोई बात नहीं। हर कौम के लोग बराबर उनको याद कर रहे हैं। बहुत अच्छे लीडर थे, 40 साल तक एक ही कांग्रेस पार्टी में रहे, कोई दूसरी पार्टी इख्तियार नहीं किए। बहुत से काम किए, बस स्टैंड उन्हीं के पीरियड में तामीर हुआ। सब कामों से ज़्यादा एक अहम बहुत बड़ा काम अंजाम दिया, कृष्णा नदी से रायचूर तक पाइपलाइन पानी का डलवा दिया। अब रायचूर में पानी की किल्लत नहीं रही, एक दिन और पानी आता है। घरों के सामने गड़े कटते थे, गड़े में से पानी ढोते थे, अब गड़े बंद हो गए, अब घरों में पानी आ रहा है। बल्कि हालत हाजा पर रोजगार समाप्त करें अपने मखसूस अंदाज में। कहते कहाँ पर ईरान से, मिस्र से, अफगानिस्तान हुफात को आते थे और सीरत सुना के जाते थे। और मिलादुन्नबी भी आज के शाम में तमाम लोगों को रहनुमाई वगैरह तस्लीम करते थे। बहुत से काम करे हैं। सैयद यासीन साहब हमको रुला कर चले गए, उलझन में और गम को बढ़ा कर चले गए। यासीन साहब, सैयद यासीन साहब, अलहाज सैयद यासीन साहब हमको रुला कर चले गए, उलझन में और गम को बढ़ा कर चले गए। रायचूर की वो शान आन बान बढ़ा कर चले गए। तमाम लोगों को बिला तफरीक, मज़हब, मिलत, सबको मोहब्बत का सबूत देकर चले गए। अपना नाम, हाल का कमाल अपने फर्जंदों को सुना कर चले गए। मोहम्मद रसूल साहब साबिक़ा सिमन को भी सुना कर चले गए। मकसद है गौहर हमारे शहर का नुकसान हो गया, गौहर हमारे शहर का नुकसान हो गया। सैयद अलहाज सैयद यासीन साहब खुद को बुझाकर शहर खामोशा में चले गए। उर्दू ज़ुबान से उनका ख़ास ताल्लुक़ रहा, मगर उर्दू के आपस निकट जमा कर चले गए। वो अपने घर में मुशायरे भी कराते थे। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने दिल से आप सभी का जो है खैर मक़दम करता हूँ और सलाम अर्ज़ करने की सादत हासिल करता हूँ। आज का प्रोग्राम ताज़ियत प्रोग्राम तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि कुछ और प्रोग्राम है। ये वो ताज़ियत का मतलब ये होता है कि शियाओं के मामलात ताज़ियत के होते हैं। खैर जाने दीजिए, आज मैं आली जनाब या सालुक से कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो कि वो मेरे अपने लिए बहुत ही मौसम थे। हर वो प्रोग्राम वो उनका जो भी हुआ करता था, जो भी प्रोग्राम होता था, उरूज को बुलाओ, जहाँ कहीं भी हैं उरूज को बुलाओ, और बग़ैर माइक के उरूज को बुलाओ, बल्कि जो है ना जो बातें कहा करते थे आपके वालिद मोहतरम, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह उनको जो है ना जन्नत में जगह दे और उनके ख़ानदान वालों को, उनके अफराद को जो है ना सब्र और जमील आसमाए। मैं अपनी जानिब से उनके लिए खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि वो अल्लाह उनको जो है ना जन्नत में आला मुकाम दे, इसलिए कि वो सादात गिरामी हैं। हम उनके लिए क्या दुआ करते हैं? उनके लिए दुआ कि हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। वो सादात हैं, अल्लाह ताला उनकी दुनिया में ही गुनाहों को माफ़ करके उनको जन्नत में जगह दे रखा है। सादातों का वो मुकाम है। मेरे अपने बाबा जान और अम्मी जान ये बातें कहा करते थे, और आरिफ साहब ये बातें बोले हैं, मैं आप सभी के सामने ये बातें बता रहा हूँ। खैर जाने दीजिए ये बातें, उससे क्या मतलब कि अल्लाह उनको जो है ना वो मुकाम दुनिया में तो दिया था और आखिरत में भी वो दर्जा दे कि जो है ना हम आने वाले दिनों में जो है ना उनके जो भी यहाँ पे कारनामे हुए उसका जिक्र करते चले। खुदा उनको जो है ना उनके ख़ानदान वालों को
खुश व खुर्रम ज़िंदगानी दे, उनके बच्चों को जो है ना सवेरे जमील अता फरमाए। मैं अपने जानिब से बातें बोला हूँ, आप जो है ना बस मेरी अपनी बातों का जो है ना खुद ना बुरा समझे ना बुरा समझे, मेरी अपनी बातों का तस्करा कर दिया हूँ। खैर अल्लाह जो है ना इन चीज़ों को जो है ना कबूल कर ले, आमीन सुमा। को सांसों में बसाना चाहिए, सीने में दिल हो तो दर्द पाना चाहिए। लोग ये कहते हैं मुकद्दर आजमाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ उन्हें अपना बनाना चाहिए। इस मकसद से ये एहतमाम किया गया है जिस अल्लाह के वली के बारगाह में। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से और अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ल से सैयद यासीन साहब क़िबला के मज़ार मुबारक पर रहमतों बरकतों को नुज़ूल अता फरमा दे और उन्हें खूब जन्नतुल आला, जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमा दे और उनके तमाम साहिबज़ादों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। मैंने जो अशार पढ़ा हूँ अभी, वो अशार की जो खूबियाँ हैं ना हमारे साथ के अंदर मौजूद थे। पानी का एक ही वाक़या नहीं है, अल्लाह के करम से कौम का जो उनके अंदर जज्बा था, कौम का जो दर्द था, एक छोटा नन्हा सा अगर मासूम बच्चा भी अगर फ़ोन करता तो वो फ़ख्र नहीं करते थे, फ़ौरन फ़ोन उठा लेते थे और उसकी क्या तकलीफ़ है जो है उसको फ़ौरन दरियाफ़्त करते थे। तो यासीन साहब में ये खूबी नहीं है, हज़ारों किस्म की खूबियाँ थी और दीनी मामले के अंदर भी बहुत उभर कर जो है आगे हिस्सा लेते थे। आप सबको मालूम है हर साल जो है क़िरात कलाम पाक का जो आगाज़ कर यहाँ पर गए हैं यासीन साहब, उनकी कितनी तारीफ़ करें तो कम है। उतनी दूर से हुफ़ाज़ कराम को बुलाकर यहाँ क़िरात का काम जो अंजाम दिए हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं यही दुआ करता हूँ कि उनके साहिबज़ादे इस कार्रवाई को हमेशा जो है लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला और ये बच्चों की उम्र में अल्लाह ताला खूब बरकत देंगे और मुझे यकीन है कि अपने वालिद के नक्श कदम पर ये बराबर जो है चलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला और हम सबका भी साथ होना चाहिए। जैसा हम हमेशा यासीन साहब MLA साहब क़िबला को हम हमेशा साथ देते थे, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि हम सब मिलकर भी है ना साहब के साहिबजादों का हम हमेशा जो है साथ देने की कोशिश करेंगे और साहब भी जो है हमेशा हम सबका ख्याल रखेंगे। बस इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खासकर मोहसिन बाबा से मेरी ख्वाहिश है कि इस आवाज़ को आवाज़ समझ के समझें तो शहर चूका भरा हो सकता है। वाक़ई जाऊँ हाज़िर मिल्लत सामान्य काम, आज का जो इजलास है एक गमज़दा इजलास है और इस इजलास में खास कर वो नुमाइंदे की गुफ्तगू होगी जिस पर हम हफ्ते में एक बार मुलाकात किया करते थे और वो नुमाइंदा हमारे लिए एक इकबाल की तरह थे और ख़ासकर आपने इस शहर में जो काम किया है उस काम के अल्फाज के लिए कहीं जगह नज़र नहीं आती खासकर, मगर एक चीज़ बताऊंगा कि सैयद यासीन साहब MA से ग्रेजुएट थे और आपने MA से सेकंड क्लास कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ से निकाला था और आप CBA से थे। ये एक काबिलियत थी और आप जो भी करस्पॉन्डेंस करते खुद करते थे, रातों की नींद गंवाकर आप मुसलमानों के लिए गैर मुसलमानों के लिए, उनके पास यासीन साहब के पास कोई मजहब नहीं था। यासीन साहब तो चले गए मगर तारीख़ रह गई, मगर वो तारीख़ है शायद हम भुला नहीं सकते। कृष्णा से राइतों को पानी लाया गया वही यासीन साहब थे। ओपेक का परमिशन आपने लिया और यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस आपने काम किया। ऐसे कई मसाइल हैं मगर बदबख्ती या बदनसीबी समझो, मशाइखीन हो या एमाए काम हो, एक मशाइख भवन या एमाए काम की मजलिसों के लिए एक कमरा वो हमने तलाश नहीं किया। इंतखाब के बाद हम सोचते हैं कि ऐसा होना था। अफसोस की बात है, अल्लाह
ان کی مغفرت کرے، ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے، نیک سمجھ دے، اور قوم کی قیادت ختم ہو چکی ہے، قوم کی قیادت ختم ہو چکی ہے۔ یاسین صاحب کے بعد قیادت ختم ہو گئی، اب سیاست باقی ہے۔ سیاست کو لے کر چلنے کے لیے رائٹر کے مسلمانوں میں وہ دم نہیں ہے، رائٹر کے مسلمانوں میں وہ دم نہیں ہے جو رائٹر کی سیاست کو قیادت میں بدلنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میرا خیال رہا ہے، محسن بابا آپ ہو یا شہر ہو، اگر اس میں دلچسپی لیں تو غریبوں کا فائدہ یقیناً ہو سکتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ والد صاحب یہ ہاشمیہ قوم کی مثال ہے، کئی لوگ دیا کرتے تھے مگر آج ویران ہے۔ اگر یاسین صاحب ہوتے تو کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوتی۔ اپنے والد صاحب کا خیال اگر آپ کے دل میں آ جائے، رائٹر کے غریبوں کا فیصلہ ہو جائے۔ ہم آپ کو خوش نوی نہیں کر رہے ہیں، ہم عاجبانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یاسین صاحب کا واسطہ دیتے ہوئے ان کی آواز کو ہم کہہ رہے ہیں، آپ چاہے غریبوں کے فیصلے ہو سکتے، غریبوں کے مسائل حل ہو سکتے۔ میونسپلٹی میں کئی مسئلے ہیں، ہاں، اور ڈی سی آفس میں کئی مسئلے ہیں، مسائل چاہے بولتا نکل جاتا، اس کی جھولی میں کوئی نہ چلیے اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاه وسلام عليك يا حبيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا اولياء الله اجمعين خير نية ربنا تقبل منا الفاتحه